Stop doing manual work. Start automating with AI. Subscribe to the Automation Architect and click the bell icon for powerful automation updates every week. Let's get started. In this video, we're diving into Google Apps Script, and trust me, this can completely transform how you work with Google Sheets. Good evening, Lokesh sir. No, বুঝো ডাকছো আমার ডাকলে দাদা ও দাদা আমার ডাকছো যা Hi everyone. So we'll start in scheduled time, 7-8 minutes. We'll wait for little more participants and the speaker has also joined. So we'll be very close to starting on time.
Okay, some people are still joining. So, Shreyansh ji, you can unmute yourself. Shreyansh ji. Shreyansh ji, my voice is audible. Can anybody confirm my voice is audible? Yes. So, Shreyansh ji, I think he's not looking. Shreyansh ji. Okay, thank you, those who have replied. Hello. Yes, sir. Yes. Yes, Okay. Lokesh, sir. So, we are good to start. Okay, sir. Okay, so just give me 2 more minutes. Still some participants are joining, but we'll start with the basic introduction and everything. Just give me 1 second. Okay. Okay, so we are starting. Hello everyone. Welcome to the 66th session for Skills at the Rate 100. And we are delighted because today is one special topic which we have not taken before. We were waiting for someone really special to take this topic. And we have a special speaker today, C.A. Shreyansh Kothari ji, who is a fellow chartered accountant, company secretary, and commerce graduate with honors. He has completed the ICI Level 1 course and specializes in applying technology to audit and compliance. He is a partner at RK Kankaria and Company, Kolkata, with 7+ years of post qualification experience in statutory audit, GST analytics, and corporate restructuring. He is recognized for integrating Excel automation, Power Query, VBA, Python, Google Apps Script, and AI-driven workflows into professional practice. He also serves as faculty for ICI's Aura program and regularly speaks at ICI forums on AI automation and data-driven compliances. So thank you so much, Shreyanshi, for accepting our invitation. And as I told, this topic is really very special and underutilized. A lot of people don't know that with Google Sheets, Google App Script, we can do a lot of Google workflows automation. So very excited for today's session. Over to you, Shreyanshi. Thank you, Lokesh, sir. It is an opportunity for me to speak here. So, without wasting, let's start this session. So, I would request everyone, just a second. I would request, is my screen, just a second. Your video is very visible. Screen not yet. Just it's Screen going is to be. visible? Yes, yes. Yeah. The QR code is So, there. yeah. So, request everyone to please scan this QR code first. Everyone has got a Google form here. Yes, one Google form. Yes, yes. So आप लोग उसको fill up करो सर. Yeah. So जिसने fill up किया है, आपके मेल जो आपने मेल दिया था उसमें एक मेल गया होगा. चेक करिए सर आपके मेल आया है क्या एवरीवन. तो बेसिकली दिस इज गूगल ऐप स्क्रिप्ट. मैंने कुछ नहीं किया. सो लाइक देर आर अप्रोक्स 50+ पार्टिसिपेंट्स. सो मेल सबको ऑटोमेटिक गया है. मैंने किसी को मेल नहीं भेजा. मैं आपके सामने ही हूँ. सो दिस इज बेसिकली गूगल ऐप स्क्रिप्ट. सो प्लस मेल में आपने देखा होगा आपको लिंक भी मिला है. जो हम आज 4 यूज केसेस डिस्कस करेंगे उसका लिंक भी वहाँ पे रहेगा. सारा डिटेल्स है लाइक द कोड, द प्रॉम्प्ट क्या होना चाहिए. सो व्हाट इज गूगल ऐप स्क्रिप्ट. तो कितने लोग एक्सेल पे काम करते हैं. एक्सेल, मैक्रोज, वीबीएस सब लोग करते हैं या वीबीए पे सब काम करते हैं. रिक्वेस्ट जो करते हैं प्लीज यस करिए. या सो या yes. So this is sort of VBA, but this is in Google Sheets. Now what is Google Sheets?
माइक्रोसॉफ्ट में जैसे अपने एक्सेल है, वैसे गूगल का है गूगल शीट्स, विच इज एन ऑनलाइन शीट सिमिलर टू एक्सेल। आप जो चीजें एक्सेल में करते हो वो सारी चीजें आप गूगल शीट्स में कर सकते हो, विद एन एडिशन कि आप गूगल शीट्स में गूगल वर्कस्पेस के सारे प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल ऐप स्क्रिप्ट। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय डिफरेंट जो आपके मॉड्यूल्स है गूगल वर्कस्पेस के, लाइक गूगल ड्राइव, गूगल शीट्स, गूगल फॉर्म्स, जीमेल, कैलेंडर, गूगल साइट्स, आप अलग अलग चीजों को इंटीग्रेट कर सकते हो एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपना पूरा वर्क फ्लो डिजाइन कर सकते हो। दिस इज नॉट फॉर कोडिंग, अपने यहाँ कोडिंग नहीं सीख रहे हैं, अपने यहाँ वर्क फ्लो डिजाइन कर रहे हैं कि आज आज अगर मैं नहीं भी रहूं ऑफिस में तो मेरा काम होते रहे। दिस इज बेसिकली आज हमारा इंटेंशन ये है। सो जनरली सीए फर्म्स में जो जैसे हमारा सीए फर्म में भी है और काफी सीए फर्म्स में भी होता है कि हमारा जो मेजर टाइम है वो क्लाइंट को रिमाइंडर्स, फॉलो अप्स में, डॉक्यूमेंट कलेक्शन में, कुछ रिपोर्टिंग करना है या कोई किसी को कोई सीनियर पार्टनर को रिपोर्टिंग करना है, ये सारी चीजों में टाइम चला जाता है। ये सारी चीजें करते करते हमारा रिपीटेटिव टाइम, मेजर टाइम इसी में कंप्लीट हो जाता है। सो होप एवरीवन अग्रीज टू दिस, या किसी का कोई और ओपिनियन है? आई वुड रिक्वेस्ट, आप लोग अग्री करते हो प्लीज राइट अग्री इन द चैट बॉक्स। अग्री अग्री अग्री, राइट। सो इस चीज को हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, वो चीज हम गूगल ऐप स्क्रिप्ट से करेंगे। सो गूगल ऐप स्क्रिप्ट का मेन जो डेटाबेस है जिसमें ये ऑपरेट करेगा उसमें तीन चीजें हैं। वन इज अ डेटाबेस, देन देयर इज अ ब्रेन एंड देन देयर इज एन एग्जीक्यूशन। सो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज अ गूगल शीट और अ गूगल फॉर्म जिसमें हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। नाउ ब्रेन क्या है? ब्रेन इज द ऐप स्क्रिप्ट, सिमिलर टू वीबीए, अपने ऐप स्क्रिप्ट में स्टेप्स दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि जो डेटा कलेक्ट हुआ है उस डेटा को इस तरह से यूज करके हमें ये रिपोर्ट चाहिए या ये प्रोसेस कंप्लीट कराना है। एंड एग्जीक्यूशन कैसे होगा? एग्जीक्यूशन होगा थ्रू जीमेल, अगर आपको कोई मेल करना है ऑटोमेटिक, या थ्रू गूगल ड्राइव। जैसे मैंने आपको अभी जो हमने अभी क्यूआर स्कैन किया, आपने गूगल फॉर्म भरा विच इज द डेटाबेस, फिर उसमें गूगल फॉर्म का जनरली रूल होता है कि गूगल फॉर्म में आप कुछ भी भरते हो वो एक गूगल शीट में उसका डेटा सेव होता है। तो गूगल शीट में हमने ऐप स्क्रिप्ट का कोड डाला है जो विच इज द ब्रेन ऑफ द गूगल शीट, एंड बेस्ड ऑन दैट उसमें इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ था कि जब ये ऑटोमेटिक गूगल फॉर्म से डेटा आए, ऑटोमेटिक सबको मेल चला जाए इंडिविजुअली, विच इज द एग्जीक्यूशन थ्रू जीमेल, राइट। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेरीज है? आई वुड लव टू आंसर एनी क्वेश्चंस, देन we'll proceed with the use cases, राइट। तो अपने अपना फर्स्ट यूज केस देखते हैं, विच इज अभी जैसे आर्टिकल्स आर्टिकल्स का ई डायरी आया है, जनवरी 1 से इम्प्लीमेंट हुआ है फॉर द न्यू आर्टिकल्स। तो वो तो जैसे इंस्टीट्यूट का एक है जहाँ पे आर्टिकल विल रिपोर्ट एंड हमें भी दिखेगा, बट अगर वो चीज़ हमें खुद इम्प्लीमेंट करना है हमारी ऑफिस में, तो आर्टिकल को बेसिकली करना चाहिए कि वो डेली जो उसने काम किया, डेली शाम को एक गूगल फॉर्म भरे, उस बेसिस पे डेटा सेव हो, एंड वीकली या मंथली जैसे है जो आर्टिकल मैनेज कर रहे हैं उसके पास एक वीकली या मंथली रिपोर्ट चला जाए, जिससे वो आर्टिकल का प्रोडक्टिविटी मेजर होता है, उसका टाइम मेजर होता है, एंड जो मैनेजर है उसे कुछ करना नहीं, उसके पास ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग जा रही है, राइट। तो वो चीज अपने देखते हैं ये कैसे होगा। जस्ट अ सेकेंड। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। Yes. Yes. Okay, sir. So we'll start with the first use case, article e-diary. तो मैंने एक होप आप लोग को गूगल फॉर्म्स बनाना आता है एवरीवन? किसी को नहीं आता तो अपने वो देख सकते हैं। एक नो है, यस यस यस। सो ठीक है, मेजरली सबको आता है। सो अपने गूगल फॉर्म देखते हैं। ये मैंने एक गूगल फॉर्म डिजाइन किया है। इसमें आपका है जस्ट अ सेकेंड, सॉरी।
इसमें आपका वीक गूगल फॉर्म का टाइटल है वीकली टाइम शीट। मैंने अपना नाम दिया है, श्रेयांश कोठारी एंड कंपनी। देन द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम, जिसका है ड्रॉप डाउन, जिसमें आपका जो आर्टिकल्स का नाम है वो दिया है मैंने। मैंने पर्पजली इसे ड्रॉप डाउन रखा है क्योंकि व्हेन आर्टिकल्स कोई कोई डेटा फिलअप कोई अपना गूगल फॉर्म में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आई वांट द रिपोर्ट टू बी स्टैंडर्डाइज्ड। आज मुझे मेरे फॉर्म में पता है कौन कौन आर्टिकल्स है, तो मैं उनका वो स्टैंडर्ड रिपोर्ट कर सकता हूँ। अगर सपोज करो यहाँ पे कोई नाम है जैसे रोहित अग्रवाला, अगर मैं उसे फ्रीडम दे दूं कि वो अपना नाम लिखे, देन ही विल राइट रोहित ए, या अग्रवाला रोहित, या राइट रोहित ओनली। तो वहां पे वो चीज को स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हैं, उसलिए मैंने यहाँ ड्रॉप डाउन बनाया नेम में। देन द सेकेंड, एंड ये मैंने मैंडेटरी फील्ड रखा है, लाइक ऑल द क्वेश्चंस इन दिस गूगल फॉर्म इज मैंडेटरी। देन द डेट ऑफ वर्क, उसे यहाँ डेट डालना होगा। देन क्लाइंट नेम, जनरली जो मैंने ऑब्जर्व किया है, हो सकता है आपका डिफर हो, एक आर्टिकल एक दिन में मैक्सिमम 3 से 4 क्लाइंट का ही काम कर सकता है, उससे ज्यादा काम नहीं कर सकता है। अगर ज्यादा कर रहा है अपना तो वो वहाँ डिटेल डाल सकता है। मैंने 4 का अजम्पशन लेके किया है कि आप मैक्सिमम 4 क्लाइंट का नाम या कॉमा से सेपरेट करके यहाँ डाल सकते हो। देन द एरियाज ऑफ वर्क, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, जो भी आप जिस क्लाइंट जिस पे काम कर रहे हो, आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क डन। उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, बी स्पेसिफिक एंड मेंशन द क्लाइंट नेम, नेचर ऑफ वर्क एंड पीरियड कवर्ड। लाइक एग्जांपल, कंपनी का नाम, क्या काम किया मैंने, किस पीरियड के लिए किया। एंड देन द आवर्स स्पेंट, कितने आवर्स मैंने उस पर काम किया, उसे डेली भरना है। ये ये जो यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप होगा, इसका ये मैंने एक ये गूगल शीट पे लिंक किया हुआ है। नाउ दिस, ये गूगल शीट अपने देखते हैं क्या है। ये हमारा बेसिकली गूगल शीट आएगा। जो हमारे क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस का कॉलम क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली, लाइक टाइम शीट, नेम, डेट ऑफ वर्क, क्लाइंट नेम, एरिया ऑफ वर्क, डिटेल डिस्क्रिप्शन, आवर स्पेंट। तो ये मैंने कुछ सैंपल भरवा के रखा था, आप चाहो तो आप भी फिलअप कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। मैंने चैटबॉट पे एक लिंक डाला है, इससे आपका गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इफ यू वांट आप भी वहाँ फिलअप कर सकते हो। सो इफ एनीवन इज फिलिंग, वंस द फिलिंग इज डन लेट मी नो, सो मैं उसके आगे का प्रोसेस करता हूँ। अदरवाइज अगर आप नहीं भर रहे हो देन नॉट अ प्रॉब्लम, देन अपने आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कैन वी प्रोसीड फर्दर? एक फिल करके देख लेते हैं, मैं फिल कर रहा हूँ। हाँ सर, जरूर। तो आप इसको जरूरी नहीं है करंट डेट का ही अपने को डालना है, आप बैक डेट का भी डाल सकते हो, कोई भी डेट का डाल सकते हो। आज आर्टिकल है, आर्टिकल तो किसी भी डेट का डिटेल डाल सकता है। आप कोई भी डेट का डालो, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आज का ही डेट का डालना है, किसी भी डेट का डाल सकते हो। मैंने किया है राइट, फिल। ठीक है, ठीक है सर। तो आ गया मेरे पास डेटा जैसा आपने फिल किया है यहाँ पे। तो अपने ये इसमें मैंने यहाँ पे ऑटोमेट किया। अब ये यहाँ पे अपने कैसे ऐप स्क्रिप्ट को अप्लाई करेंगे, अभी तक अपने जो किए दैट इज द डेटाबेस पार्ट। अब अपने इस पे ब्रेन अपने को अप्लाई करना है कि ये ऑटोमेट कैसे हो, इसमें क्या काम होगा, इससे अपने क्या काम कर सकते हैं। अपने को वीकली रिपोर्ट चाहिए, राइट। तो उसके लिए आप कोई भी एलएलएम में जाके आप टाइप करोगे, ये आपके फील्ड्स हैं, ये आपके फील्ड्स आ रहे हैं। ये क्या हुआ, चेंज कैसे, ओ ये चेंज हो गया नेम, सॉरी। हाँ, यहाँ चेंज हो गया। अब यहाँ पे जो आपके हेडर्स है, अब वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक मतलब गूगल ऐप स्क्रिप्ट का कोड अपने कैसे जनरेट करेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले अपने एक बार देखते हैं गूगल ऐप स्क्रिप्ट है किधर इस गूगल शीट में। गूगल ऐप स्क्रिप्ट कहाँ पे है? आप एक्सटेंशंस बोल के एक ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करोगे, ऐप स्क्रिप्ट है, इस पर आप क्लिक करोगे, ये ओपन हो जाएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एक ही जीमेल में मल्टीपल अकाउंट्स लॉग इन करके रखे हो, लाइक यहाँ पे अपने मल्टीपल अकाउंट्स भी लॉग इन कर सकते हैं, और भी अकाउंट्स आप लॉग इन कर सकते हो। तो जो आपका प्राइमरी अकाउंट है, प्राइमरी लाइक द फर्स्ट अकाउंट, उसी में आपका गूगल ऐप स्क्रिप्ट चलेगा। अगर आप कोई दूसरे अकाउंट में गूगल ऐप स्क्रिप्ट करोगे तो वहाँ एरर आ जाएगा, ये विंडो ओपन नहीं होगा। तो वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये जैसे ये इस तरह का एक पेज ओपन होता है, जहाँ पे यहाँ पे कुछ ज्यादा यहाँ कोड और होता नहीं। एक मिनट सर, सॉरी। तो यहाँ पे आपका कोड, ये आपका यहाँ पे ब्लैंक रहता है, यहाँ कोई कोड नहीं रहता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप मैंने चैट जीपीटी से कोड जनरेट किया था, मैं क्या प्रॉम्प्ट दिया वो अपने एक बार देख लेते हैं। 10 सेकंड, एक सेकंड, ये आपको व्यू नहीं हो रहा होगा ना? होप द चैट जीपीटी स्क्रीन इज दिख रहा है सबको? Yes, now. यस सर, सॉरी। ये सर मैंने प्रॉम्प्ट दिया था एक तो बेसिकली आज अपने को कोई भी प्रॉम्प्ट देना है, और चैट जीपीटी में कोई भी प्रॉम्प्ट देना है, आप डायरेक्ट चैट जीपीटी खोल के उसमें प्रॉम्प्ट मत दो। आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या करना है, लाइक बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा एक्सेल शीट था, कि हमारे पास गूगल फॉर्म से डेटा आया एक्सेल शीट में, उस शीट के बेसिस पे हमें आर्टिकल वाइज एक रिपोर्ट जनरेट करना है, जिसमें आर्टिकल वाइज उसका डिटेल होगा, डेट ऑफ वर्क, उसने क्या काम किया, कितने घंटे काम किया, किस क्लाइंट का किया, एंड वो उसका पूरा समरी वीकली बेसिस पे एक ईमेल जाएगा टू द मैनेजर हु इज मैनेजिंग द आर्टिकल। अब उसके लिए वो ईमेल भी ड्राफ्ट करना है, राइट? तो आपको अगर कोई भी प्रॉम्प्ट देना, आप एक वर्ड फाइल खोलो, उसमें आप प्रॉम्प्ट लिखो, पॉइंट वाइज लिखो। आज ये फर्स्ट लाइन, ये मुझे एक ऐप स्क्रिप्ट बनाना है ई डायरी के लिए, ये मेरे हेडर्स हैं, इसके लिए मुझे ये काम करना है। आप एक एक करके एक एक लाइन्स लिखो, तो प्रॉपर आपका प्रॉम्प्ट बनेगा। उसके बाद आप उसको यहाँ डालो। आप खाली 2 लाइन लिख के आप अगर यहाँ डालोगे तो चांसेस है कि आपको ज्यादा टाइम लगेगा एंड कोड ठीक से जनरेट होगा नहीं, राइट? सो एनी क्वेश्चंस ऑन दिस यहाँ तक? एनीवन? कैन आई प्रोसीड? यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो ये सर हमने प्रॉम्प्ट बनाया था, क्रिएट अ गूगल ऐप स्क्रिप्ट फॉर ई डायरी शीट फॉर आर्टिकल असिस्टेंस ऑफ आईसीआई to be implemented from January 2026. Use Google Forms to collect data from multiple articles, and based on daily work update by them, automatically send weekly reminders about weekly work update of articles, say every Friday at 7 p.m. The work date should not be more than 3 days old from the current date. अब इसका मतलब क्या हुआ? आज अपने आर्टिकल को बोल रहे हैं कि आप भरो, फॉर्म है, फॉर्म के बेसिस पे आप डेली शाम को, आपका 7 बजे 6:30 बजे ऑफिस बंद होता है, आप उसमें काम भरो अपना। अब आर्टिकल के पास लिबर्टी है, वो किसी भी डेट का भर सकता है। तो हमने वहाँ रूल लगा के रखा है कि आप 3 दिन से ज्यादा बैक डेट का एंट्री नहीं कर सकते हो। आज सपोज 18th है, तो आप 15 फेब से पहले का एंट्री नहीं कर सकते हो। इससे क्या होगा कि कंसिस्टेंटली आर्टिकल को फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि उसका रिपोर्टिंग हो रहा है उसके जो मैनेजर है या जो पार्टनर है उसके पास। अगर 3 दिन से ज्यादा करेगा तो वो चीज आपका रेड फ्लैग होके मैनेजर का रिपोर्टिंग मेल में चला जाएगा कि ये ज्यादा बैकडेट है, 3 दिन से ज्यादा। तो यहाँ आपने देखते हैं दैट वर्क डेट शुड नॉट बी मोर देन 3 days old फ्रॉम द करेंट डेट। इफ दैट इज सो देन सेम शुड बी रेड फ्लैग्ड इन द वीकली समरी ईमेल। सिमिलरली, इफ एनी वर्क इज रिकॉर्डेड फॉर अ फ्यूचर डेट, अब हमने वहाँ डेट बोला है, 18 फेब को वो 21 फेब का काम भर रहा है, तो वो कैसे हो? वो भी तो इम्प्रैक्टिकल है। तो वो चीज के लिए भी हमने रूल लगाया है, इफ एनी वर्क इज रिकॉर्डेड फॉर अ फ्यूचर डेट विच इज मोर देन द सिस्टम डेट ऑन द डेट ऑफ सबमिशन, द सेम शुड बी सिमिलरली रेड फ्लैग्ड। The Google Sheet contains the following headers: timestamp, name, date of work, client name, area of work, detailed description of work done, hours spent. There should also be a tab
beside help tab to run this automation manually. सपोज अब ये मैंने जो गूगल एप्स से बनाया है, ये वीकली रन करेगा। अब मुझे देखना है कि ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अगर चाहूँ तो इसको मैनुअली भी एक बार रन करके चेक कर लूँ। तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन दिया है। देयर शुड ऑल्सो बी अ टैब बिसाइड हेल्प टैब। अब ये अपने एक बार क्या इससे मैं रेफर कर रहा हूँ वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट सर। आप यहाँ पे अगर देखोगे गूगल शीट में, यहाँ पे एक अलग हेल्प। जनरली आप अगर कोई गूगल शीट आप लोग अगर ओपन करोगे तो हेल्प के बाद और कोई ऑप्शन नहीं आता है यहाँ पे। मेरे में आ रहा है ई डायरी ऑटोमेशन, विच इज अ सेपरेट टैब इन एडिशन टू हेल्प एक्सटेंशन डेटा टूल्स एंड ऑल। ये मैंने स्पेसिफिकली उसको बोला था, इसलिए उसने मुझे ये दिया। राइट, बैक टू प्रॉम्प्ट, अपने एक बार प्रॉम्प्ट पे आते हैं वापस। हाँ, तो create a Google App script for the same. It should work professionally, test the code, check for errors and provide an error free code. Generally ये मेरा प्रैक्टिस है, आप लोग चाहो तो कर सकते हो। कोई भी अपने कोड जनरेट करते हैं, बी इट अ VBA कोड, बी इट अ गूगल ऐप स्क्रिप्ट कोड, बी इट अ पाइथन कोड, कोई भी HTML कोड, आप कुछ भी जनरेट करो, आप लास्ट में एक लाइन जरूर लिखो, टेस्ट द कोड, चेक फॉर एरर्स एंड प्रोवाइड एन एरर फ्री कोड। इससे क्या होता है, आपका ये नहीं है कि आप ये नहीं लिखोगे तो आपका कोड सही नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ये लिखते हो तो आपको जो नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको बार बार आपको रन करना पड़ेगा, क्योंकि हो जरूरी नहीं है कि सिंस इट इज जनरेटिव एआई, आज आप कुछ भी लिख रहे हो जरूरी नहीं है एक बार में कोड सही आ जाए, आ भी सकता है, लेकिन चांसेस है कि उसमें कुछ माइनर ग्लिचेस हो। आप रन कर रहे हो तो कोड में कोई एरर आ गया, तो अगर ये लिखोगे तो जनरली जब वो कोड जनरेट करके देता है, द चैट जीपीटी और एनी LLM विल सिम्युलेट द कोड। वो अपना बैकग्राउंड में उस कोड को रन करके देखेगा, कोई एरर जाएगा तो उसको डिबग करेगा ना, आपको एक एरर फ्री कोड देगा। जिससे क्या होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसके बाद आपका कोड सही आएगा, लेकिन आपको जो नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको करना पड़ेगा वो कम हो जाएगा। राइट, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है मेरा प्रॉम्प्ट का। इसमें किसी को कोई क्वेरी है यहाँ तक? प्लीज आप लोग, लेट्स मेक इट इंटरैक्टिव, तो लाइक तब मजा आएगा। किसी को कोई क्वेरी है, कुछ भी है तो प्लीज कमेंट। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। तो उसके बेसिस पे इसने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गूगल एप स्क्रिप्ट का, ये डेटा कलेक्ट होगा एंड ऑल दैट, हेडर्स ये है। उसके बाद यहाँ पे इसने कोड दिया। कोड के बाद इसने बताया कि इस कोड को हमें ट्रिगर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक वीकली मेल जाना है। अब मैं सपोज अगर नहीं भी हूँ ऑफिस में, तो मेल ऑटोमेटिक जाना चाहिए, मुझे बार बार जाके रन नहीं करना। अगर मुझे रन करना है तो फिर ऑटोमेशन क्या चीज़ का है? तो वो हमें ट्रिगर क्रिएट करना है। वो हम देखेंगे, अभी आगे देखेंगे ट्रिगर क्या होता है। प्रोफेशनल एनहेंसमेंट दिस एंड ये आपका ICS सूटेबिलिटी एंड ऑल दैट स्टफ। अब यहाँ ये मैंने कोड रन किया, मेरा एक यहाँ पे एरर आया। सॉरी, आप लोगों का व्यू होगा एरर, एन अननोन एरर हैज ऑकर्ड, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। अब क्या एरर है नहीं है मुझे नहीं पता, तो मैंने उसे वापस वो जो उसने कोड जनरेट किया था वो कोड दिया, एरर का स्क्रीनशॉट दिया, एंड स्क्रीनशॉट देके मैंने उसे कहा सॉरी, रिफाइन द कोड। नहीं, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कोड दिया, स्क्रीनशॉट दिया, बेस्ड ऑन दैट उसने अपने आप इसको रिफाइन करके मुझे कोड दे दिया, क्या एरर है उसने बताया, एंड यहाँ पे उसने वापस एक कोड दे दिया। तो ऐसे करके मैंने 5-6 बार मतलब आइट्रेशन किया है, उसके बाद एक कोड बना है। तो वो आप ट्राई करोगे आपका भी बन जाएगा। तो वो कोड मैंने यहाँ पे डाला है। नाउ अब यहाँ पे जब भी आप सपोज मैं एक आपको ब्लैंक गूगल शीट जनरेट करता हूँ एक बार, मतलब अपने कोड डालते हैं तो कैसे प्रोसेस होता है, जस्ट वो दिखाने के लिए, एक सेकेंड सर। फोल्डर पे मैं एक ब्लैंक स्प्रेडशीट जनरेट करता हूँ, क्रिएट एंड शेयर, ठीक है। एक ब्लैंक शीट मैंने जनरेट किया, एक्सटेंशंस, जस्ट मिनट, ये एक्टिवेट नहीं हुआ। हाँ, एक्सटेंशन ऐप स्क्रिप्ट। नाउ सॉरी, जस्ट अ सेकेंड सर, ठीक है। होप अभी ये शीट व्यूएबल है, शीट व्यू हो रहा है सबको? थैंक यू। तो हमने क्या किया, अभी एक नया ऐसी ब्लैंक स्प्रेडशीट मैंने यहाँ न्यू पे क्लिक किया, गूगल शीट पे जाके मैंने यहाँ ब्लैंक स्प्रेडशीट एक क्रिएट किया।
जस्ट अपने वो गूगल ऐप स्क्रिप्ट कोड चलता कैसे है, वो दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा में सेव्ड है तो वो ऑटोमेटिक रन करेगा। लेकिन अपने इनिशियली उसको कैसे रन करेंगे वो चीज़ एक बार अपने देखते हैं। स्प्रेडशीट है इसमें, यहाँ पे अपने एक्सटेंशंस में जाएंगे, ऐप स्क्रिप्ट में जाएंगे, तो ये यहाँ पे विंडो खुलेगा। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आप कोई भी शीट से जाके ऐप स्क्रिप्ट में जा रहे हो, इफ यू नोटिस आप कोई भी शीट पे क्लिक कर रहे हो, उसके एक्सटेंशन से जाके ऐप स्क्रिप्ट में जा रहे हो। सो जो ऐप स्क्रिप्ट आप डाल रहे हो दैट इज स्पेसिफिक ओनली टू दैट गूगल शीट, बिकॉज उस गूगल शीट का ऐप स्क्रिप्ट में वो कोड डला हुआ है। दैट विल नॉट वर्क इन एनी अदर स्प्रेडशीट, अगर अनलेस आपने वहां कोड डाला है तो, राइट। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ कोड डाल रहे हैं, यहाँ पे कुछ अपना बाय डिफॉल्ट कोड रहता है, अपने अपना कोड कॉपी करते हैं, यहाँ जो है उसको अपने डिलीट करते हैं, एंड यहाँ हमने अपना कोड डाला। ठीक है, एक बार हमने कोड डाला, यहाँ पे एक फ्लॉपी का लोगो आता है विच इज सेव। आप यहाँ सेव पे क्लिक करोगे, सेव हो गया। वंस इट इज सेव आपके पास चार ऑप्शन एनेबल हो गए, रन, डीबग, ऑन ओपन, एग्जीक्यूशन लॉग। नाउ ऑन ओपन ये वाला क्या है, आप जो कोड डालते हो कोड में अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं, लाइक फंक्शन ऑन ओपन, फंक्शन क्रिएट मैनुअल टैब, फंक्शन सेंड वीकली समरी। ये सारे फंक्शंस आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में दिखेंगे। सेंड वीकली समरी, क्रिएट मैनुअल टैब, सेंड वीकली रिपोर्ट, बिल्ड ब्रांडेड HTML ईमेल, क्योंकि जो ईमेल कर रहा है वो ईमेल का बॉडी क्या होगा वो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, रिसेंट टाइम, फॉर्मेट, डेट। ये सारे फंक्शंस है जो इस कोड में है। ठीक है, अब इसको हम एक बार रन करते हैं। जब भी आप कोई भी कोड को पेस्ट करके फर्स्ट टाइम रन करोगे, आपसे वो ऑथोराइजेशन पूछेगा। आप जब तक वो ऑथोराइजेशन नहीं दोगे आपका कोड रन नहीं होगा। तो अपने उसको करते हैं रिव्यू परमिशन। अपने देख रहे हैं अपने क्या क्या चीज़ का एक्सेस देना पड़ेगा, उससे क्या परमिशन देने हैं। तो ये नहीं दिख रहा हो, ये दिख रहा है क्या आपको परमिशन का व्यू? एक बार अपने नहीं नहीं यहाँ सर, से आपने शायद स्क्रीन शेयर कीजिए आप जब। स्क्रीन शेयर सा कर दिया है सर। अब आया है, अब आया है। आया है ना सर, आया ना, एक बार वापस करता हूँ, रुकिए। सॉरी, ठीक है। इसको अपने रन कर रहे हैं, यहाँ पे रिव्यू परमिशन पूछ रहा है। नाउ परफेक्टली विजिबल। ठीक है सर, ठीक है सर। यहाँ पे रिव्यू परमिशन जैसे ही आपने क्लिक किया है अपने पास इस तरह का एक मैसेज आएगा, द ऐप द द ऐप इज रिक्वेस्टिंग एक्सेस टू सेंसिटिव इन्फो इन योर गूगल अकाउंट until द द डेवलपर, जो भी आपका ईमेल आईडी है, वेरीफाइज दिस ऐप विद गूगल, यू शुडंट यूज इट। इसमें अपने एडवांस्ड में जाएंगे, कंटिन्यू ओनली इफ यू अंडरस्टैंड, गो टू अनटाइटल प्रोजेक्ट, अनसेफ। अब अनटाइटल प्रोजेक्ट क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट का नाम अनटाइटल प्रोजेक्ट रखा हुआ है, जो बाय डिफॉल्ट रहता है। आप इसका कोई नाम चेंज करोगे तो वहां वो नाम दिखाएगा। अब ये अनसेफ बोल रहा है, विच इज अनसेफ नहीं है, ये इनका सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, इसलिए अनसेफ दिखाता है। ऐसा कुछ अनसेफ नहीं है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, नाउ इट इज शोइंग कि क्या क्या उसे परमिशन चाहिए। सिलेक्ट व्हाट द अनटाइटल प्रोजेक्ट कैन एक्सेस, सी, एडिट, क्रिएट एंड डिलीट ऑल योर गूगल शीट स्प्रेडशीट्स, सेंड ईमेल एज यू। जो हमारा, नाउ अगेन मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जो ऐप स्क्रिप्ट कोड है वो उस स्प्रेडशीट से रिलेटेड है, यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये उस स्प्रेडशीट में ही काम करेगा, अदर स्प्रेडशीट पे काम नहीं करेगा। एंड सेंड ईमेल एज यू, क्योंकि हमें वीकली रिमाइंडर ईमेल सेंड करना है, तो हमें ईमेल का एक्सेस देना पड़ेगा, तभी हमारे ईमेल से ऑटोमेटिक ईमेल जाएगा। तो हम ये परमिशन इसको देते हैं, कंटिन्यू। अब आप एक सेकेंड, अब आप देखोगे यहाँ नीचे एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। ये मैंने रन किया था तो वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, मैंने परमिशंस दे दिया। ठीक है, अब इससे ये कंप्लीट होने से क्या हुआ, आप एक्सेल शीट पे जाओ, यहाँ पे देखो एक मैनुअल बन के आ गया, नीचे एक स्प्रेडशीट अलग से, और ऊपर एक ई डायरी ऑटोमेशन बोल के टैब आ गया, सेपरेट टैब, जो उस कोड में लिखा हुआ था। राइट, तो अपने ऐप स्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, रन कैसे करेंगे, वहां तक अपने क्लियर है? एवरीवन प्लीज, कोई भी क्वेश्चन है प्लीज आस्क, एनीथिंग चैटबॉट में, चैट बॉक्स में आप बोल सकते हो। ठीक है, तो वी कैन प्रोसीड। तो सिंस दिस इज अ ब्लैंक शीट, ये जस्ट मैंने आपको ऐप स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो दिखाने के लिए किया था। सर नहीं, एक बार आपको वो रन करना पड़ेगा।
every time we have to run. तो सर ये कोड आप एक बार डाल के रन करोगे, इट गेट सेव्ड इन दिस गूगल शीट. आपको वो रन नहीं करना है. ये टैब भी मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मुझे अगर मैनुअली चेक करना तो मैं करूंगा, नहीं तो ये सर ऑटोमेटेड है पूरा प्रोसेस, ऑटोमेटिक ईमेल जाएगा, मुझे ये रन नहीं करना है. ठीक है सर. सो लेट्स प्रोसीड. ये अपने से एक बार क्लोज करते हैं. अब मैं जो अपना कोड था, एक मिनट, और क्लोज हो गया गलती से वो शीट भी. एक मिनट सर, वो शीट भी क्लोज हो गया गलती से, एक सेकंड. हाँ, ये कोड अब जैसे हमने यहाँ किया, अब हमें देखना है कि कैसा मेल जाएगा यहाँ पे. तो ये मैंने मेल खोल के रखा है अपना, और यहाँ पे अपने एक बार ई डायरी ऑटोमेशन रन वीकली रिपोर्ट करते हैं. ठीक है, आप यहाँ देखोगे, एक सेकंड सर. हाँ, यहाँ देखो आप, सबको मेल चला गया, सेंट यहाँ पे स्टेटस अपडेट हो गया, एंड डेट एंड टाइम अपडेट हो गया ऑटोमेटिक. सबको मेल अभी चला गया 8:31. अपने एक बार देखते हैं क्या मेल गया है यहाँ पे. सबके बेसिस एक समरी चला गया, लाइक द ई डायरी कंप्लायंस रिपोर्ट. सो यहाँ सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आ रहा है. एक मिनट सर, ये मैंने कैसे होगा, एक मिनट. हाँ हाँ, ई डायरी यहाँ पे आ गया आपका, इस टाइप का ईमेल बन के आ गया, आईसीआई आर्टिकल्स वीकली ई डायरी कंप्लायंस रिपोर्ट. मैंने क्योंकि अपना ईमेल यहाँ आप किसी का भी ईमेल मेंशन कर सकते हो तो ऑटोमेटिक उसको रिपोर्ट जाएगा. मैंने अपना किया हुआ है मेंशन, तो इसलिए मेरे को जा रहा है. अब यहाँ पे क्या है आप देखो, जैसे फर्स्ट आर्टिकल सिमरन कौर, उसका ये 4 डिटेल्स है. देशाना ये मीटिंग यस लेक्सस मोटर एक्सेट्रा, इतना आवर्स उसने किया है. यश खटेर इतना आवर्स किया. रोहित अग्रवाल ये, हर्ष दुदोरिया, वर्षा बोथरा, इशिता खंडेलवाल, विधि अग्रवाल, परीक्षित. नाउ रेड फ्लैग ऑब्जर्वेशंस. अपने आज क्या डेट है, 18 फेब. अब एक यहाँ पे फिलअप हुआ है, यश खटेर, वर्क डेट 13 फेब, सबमिशन डेट 18 फेब. क्लाइंट ये, रीजन फॉर रेड फ्लैग, बैकडेटेड एंट्री, वर्क डेट इज मोर देन 3 days प्रायर टू सबमिशन डेट. सेकेंड इज वर्षा बोथरा, 18 फेब को 19 फेब का वर्क किया है. तो रीजन इज फ्यूचर डेटेड एंट्री, वर्क डेट इज लेटर देन द सबमिशन डेट. 23 फेब फ्यूचर डेटेड एंट्री, 21 फेब फ्यूचर डेटेड एंट्री, 14 फेब बैक डेटेड एंट्री, वर्क डेट मोर देन 3 days. 18 फेब को 4 फेब, वर्क डेट इज मोर देन 3 days. ये सारी रेड फ्लैग होके आ गई. तो जो रिपोर्ट, जो मैनेजर या जो पार्टनर जो रिपोर्ट देख रहा है, ही विल गेट अ क्लैरिटी कि ये सारे को कंसिडर नहीं करना है इस वीकली कंप्लायंस रिपोर्ट में. राइट. अब ये ब्रेन था गूगल ऐप स्क्रिप्ट का. सो यहाँ तक लाइक हाउ हाउ इज इट, सही लग रहा है, कुछ काम आएगा ये एवरीवन? यस सर, सर डेफिनेटली. एक मिनट सर, प्रॉम्प्ट शेयर कर दो. थैंक यू सर. परफेक्ट, एब्सोल्युटली अमेजिंग, ग्रेट. ठीक है सर, प्रॉम्प्ट एक बार बताता हूँ सर, एक सेकंड. प्रॉम्प्ट मैं यहाँ चैट बॉक्स में ही डाल देता हूँ. कॉपी कॉपी. सर प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ चैट बॉक्स में शेयर किया है. थैंक यू सर. अब अपने इसको ऑटोमेट कैसे करेंगे, ये तो हमने ब्रेन कर दिया, अब इसका एग्जीक्यूशन करना है. कि अब मैं तो ये बार बार इस पर क्लिक नहीं करूंगा, इस चीज को ऑटोमेट कैसे करेंगे. तो अपने वापस ऐप स्क्रिप्ट वाले विंडो पे चलते हैं. एक्सटेंशन ऐप स्क्रिप्ट, विल गो टू दिस विंडो. यहाँ पे हमने कोड डाला था. अब आप यहाँ पे राइट साइड में देखोगे, ये इसका इंटरफेस है ऐप स्क्रिप्ट वाले विंडो का. यहाँ पे आप देखोगे ओवरव्यू, एडिटर, प्रोजेक्ट हिस्ट्री, ट्रिगर्स, एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट सेटिंग्स. अपने आते हैं ट्रिगर्स पे. नाउ ट्रिगर्स क्या होता है, एनीवन, आप लोगों को क्या समझ में आता है नाम से? ट्रिगर क्या होता है सर? That would initiate the action. Starter automatically starts when code will run. Right, sir, right, sir.
तो अपने यहाँ पे एक ट्रिगर क्रिएट करते हैं अभी। ठीक है, मुझे चाहिए कि जो मंडे टू फ्राइडे, मेरा मेरा ऑफिस चलता है मंडे टू फ्राइडे तक, सैटरडे संडे छुट्टी है। सपोज अपने एक बार अज्यूम करते हैं मंडे टू फ्राइडे अपना ऑफिस टाइमिंग है 10:30 to 6:30। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि हर फ्राइडे को जब अपना ऑफिस क्लोज हो रहा है 6:30 पे, फ्राइडे को शाम को 7 बजे मेरे पास ऑटोमेटिक मेल आ जाए, हर फ्राइडे को वीकली समरी का। ठीक है, तो मैं यहाँ ट्रिगर क्लिक करूंगा इस पे, ऐड ट्रिगर। अब ये जो मैंने कोड में जो फंक्शंस आपको डिफाइन किए थे, ये सब वो सारे फंक्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, इसमें अपने यहाँ पे कर रहे हैं सेंड वीकली रिपोर्ट। हमारा क्या फंक्शन हमें करना है, चूज विच फंक्शन टू रन। हमें इस ट्रिगर में कौन सा फंक्शन रन कराना है, हमें रन कराना है सेंड वीकली रिपोर्ट, कि हमारा जो वीकली रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिक सेंड हो जाए। ठीक है, चूज विच डिप्लॉयमेंट शुड रन, तो ये हेड बाय डिफॉल्ट रहता है। सिलेक्ट इवेंट सोर्स, अब हमारा इवेंट का सोर्स क्या होना चाहिए, क्या क्या है, फ्रॉम स्प्रेडशीट, टाइम ड्रिवन, फ्रॉम कैलेंडर। तो हम करेंगे टाइम ड्रिवन। वाई टाइम ड्रिवन, क्योंकि हमें हर वीकली इस टाइम पे ये रिपोर्ट चाहिए। राइट, यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रिगर, अब यहाँ अलग अलग है, टाइम ड्रिवन, स्पेसिफिक डेट एंड टाइम, मिनट्स टाइमर, हमें हर मिनट चाहिए, हर 5 मिनट में चाहिए, आवर टाइमर, आवरली चाहिए रिपोर्ट, डे टाइमर, वीक टाइमर, मंथ टाइमर। तो हम लेते हैं वीक टाइमर। एवरी सिलेक्ट डे ऑफ द वीक, किस डेट में चाहिए हमें, एवरी फ्राइडे। टाइम ऑफ द डे, टाइम ऑफ द डे 7 PM to 8 PM। 6:30 पे ऑफिस क्लोज होता है, तो हो सकता है 6:30 के 7, 6:30 से 7 के बीच जो आर्टिकल है वो फॉर्म भरे, या 6 से 6:15 के बीच भरे। तो मैं ले रहा हूँ 7 से 8 का टाइम, कंजर्वेटिव वे में। तो यहाँ 7 to 8 किया। यहाँ पे अब यहाँ पे है फेलियर नोटिफिकेशन सेटिंग्स। अगर कोई भी चीज फेल होता है तो उसका मेरे पास रिपोर्ट आएगा कि ये ईमेल नहीं गया किसी कारण से, कि ईमेल आईडी गलत है, या ये ऑटोमेशन नहीं चला, ट्रिगर नहीं चला। तो कोई भी एरर होगा इस ऐप स्क्रिप्ट में, जो हमने ऑटोमेशन डिजाइन कर रहे हैं उसमें कोई भी एरर होगा, तो उसका मेरे पास एक अलग से मेल आएगा। तो ये मैं कर रहा हूँ नोटिफाई डेली। ठीक है, अब इसको अपने करते हैं सेव। नाउ वंस दिस ट्रिगर इज डन, ये ट्रिगर भी हमने कहाँ सेव किया, जो ऐप स्क्रिप्ट में, हाउ इज दिस, जो ऐप स्क्रिप्ट में हमने कोड डाला था उसी ऐप स्क्रिप्ट में हमने ट्रिगर डिजाइन किया। राइट, ये ट्रिगर हमने यहाँ डाला। अब इससे क्या होगा, अब मुझे कुछ नहीं करना है, वंस दिस ट्रिगर इज डन। अब जो आर्टिकल है वो डेली 6:30 7 बजे अपना गूगल फॉर्म भरेगा, वीकली ऑटोमेटिक 7 से 8 बजे मेरे पास ऑटोमेटिक मेल आ जाएगा, एक समरी रिपोर्ट बन के, कि ये रिपोर्ट है। हर वीक मेरे पास एक मेल आएगा, हर वीक के फ्राइडे को, स्पेसिफिक टर्म्स, फ्राइडे को 7 से 8 बजे के बीच मेरे पास मेल आएगा। तो ये अपने इसको, ये अपना हो गया द एग्जीक्यूशन पार्ट, अपने ऑटोमेट कर दिया अपने इस प्रोसेस को। तो दिस इज द फर्स्ट यूज केस। अब ये मैंने आर्टिकल्स के लिए बनाया, आप ये एम्प्लॉयज के लिए बना सकते हो, अपना ऑफिस का प्रोडक्टिविटी चेक कर सकते हो, कितना क्या कौन कितना काम कर रहा है, कितना फ्री टाइम जा रहा है, सब चीज आप वहां पे चेक कर सकते हो। एंड क्योंकि आपके पास क्लाइंट वाइज वर्क वाइज रिपोर्ट आ रहा है, आपको भी आइडिया है कि उस क्लाइंट में कितना टाइम लगता है, एंड वो अगर उसमें ज्यादा टाइम दे रहा है तो उसका प्रोडक्टिविटी भी आप चेक कर सकते हो। राइट, दिस इज द फर्स्ट यूज केस। इसमें कि एग्जीक्यूशन में या कोई भी चीज में किसी को भी प्रॉब्लम है, आई एम रेडी टू टेक द क्वेश्चन। हाउ इज दिस एक्सेल वर्कबुक कनेक्टेड विद द ई डायरी। सर एक्सेल वर्कबुक पे नहीं है, ये गूगल शीट्स पे है। आप गूगल शीट्स पे जाओगे, मैंने एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया था जिसमें द आर्टिकल्स विल डेली, सर जिसमें आर्टिकल्स डेली वो फॉर्म भरेंगे, बेस्ड ऑन दैट गूगल शीट में डेटा आएगा, एंड उसमें हमने ऐप स्क्रिप्ट लगाया था और ट्रिगर असाइन किया, जिससे ऑटोमेटिक वीकली मेरे पास समरी रिपोर्ट जाएगा। सर ट्रिगर यहाँ पे रहता है सर, सर यहाँ पे ये अपना सर इंटरफेस आता है, जो आप ओपन करोगे ऐप स्क्रिप्ट में तो इस टाइप का इंटरफेस खुलता है, कोड एंड ये सब। यहाँ पे आप कोड पेस्ट करते हो, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे क्लिक करोगे तो यहाँ ट्रिगर्स आता है। इसमें आप जाके यहाँ पे आप बॉटम राइट में आप जाओगे तो ऐड ट्रिगर का ऑप्शन आता है, वहां पे इस तरह का एक ट्रिगर क्रिएट कर सकते हो। आफ्टर दैट आपका पूरा ऑटोमेट हो जाएगा।
राइट। तो इंटरेस्टिंग है, अपने कुछ काम का, अपने यूज कर सकते हैं। कैसा लगा सर आप लोग को? वुड प्लीज बताइए। लोकेश सर ठीक है? एकदम अमेजिंग सर, एकदम अमेजिंग। थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो सर अपने नेक्स्ट यूज केस पे बढ़ते हैं। ये अपना एक यूज केस हुआ, अपने इसको एक बार क्लोज करते हैं। अपने नेक्स्ट यूज केस पे बढ़ते हैं। अपना सर नेक्स्ट यूज केस है द आईटीआर डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट। कितने लोग इंडिविजुअल्स का इनकम टैक्स फाइलिंग का काम करते हैं? इनकम टैक्स फाइलिंग इंडिविजुअल्स का कितने लोग काम करते हैं? राइट राइट। तो सर उसमें कितना कितना स्मूथली हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आता है and कितना स्मूथली हम आईटीआर फाइलिंग करते हैं, अ, आप लोग को भी पता होगा। तो अगर आप कोई भी एक इंडिविजुअल का फाइल ले लोगे, उसका एक एक फाइल में 10-10 बैंक स्टेटमेंट रहता है, 20-20 बैंक स्टेटमेंट रहता है, एंड वो डेली आपको मेल भेजता है। डेली मेल भेजेगा या वीकली मेल भेजेगा या एक महीने बाद भेजेगा। एंड आपका अगर एक भी मेल मिस हो गया, मतलब एक बैंक स्टेटमेंट गया, तो आपका पूरा आईटीआर का पिक्चर चेंज हो गया। राइट। उस चीज को अपने ट्राई कर रहे हैं कि एक सिंगल एक रिसोर्स हो जहां पे क्लाइंट वो डेटा डाले एंड अपने पास वो डेटा आए। एंड एक कट ऑफ डेट आप रख लो कि इस कट ऑफ डेट तक क्लाइंट को डेटा डालना है। उसके बाद वो डेटा नहीं डाल सकता है, उसके बाद मैं वो डेटा चेक करूंगा एंड उस बेसिस पे मैं आईटीआर फाइलिंग करूंगा। राइट। तो वो अपने कैसे कर सकते हैं, एक बार वो अपने देखते हैं। तो ये मैंने एक गूगल शीट बनाया है, आईटीआर क्लाइंट मास्टर। इसमें अपने हेडर्स डाले हैं, क्लाइंट नेम। सर शीट विजिबल है ना सबको? यस। शीट में कोई? यस सर। ठीक है। सो फर्स्ट कॉलम इज क्लाइंट नेम, देन ईमेल आईडी, पैन, असेसमेंट ईयर, फोल्डर लिंक, ईमेल स्टेटस, ईमेल सेंड डेट एंड टाइम। नाउ ये जो आपका जो है, यहाँ पे ये जो लास्ट का 3 कॉलम है, कॉलम ई एफ जी, ये ऑटोफिल होगा थ्रू गूगल ऐप स्क्रिप्ट। हमें ये 4 डिटेल ही डालना है, हमारे जितने इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं उनका। हमारा ये जो लास्ट का 3 कॉलम है ये ऑटोफिल होगा थ्रू गूगल ऐप स्क्रिप्ट। राइट। तो अगेन अब ये गूगल ऐप स्क्रिप्ट क्या करेगा, आपका ये जो डेटा डाला हुआ है, बेस्ड ऑन दिस डेटा, इसमें जो ईमेल आईडी है, जो क्लाइंट का नाम है, जो पैन है, उस बेसिस पे ये क्लाइंट को एक ईमेल ड्राफ्ट करेगा, जिसमें ये ऑटोमेटिक गूगल ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट करेगा विद द क्लाइंट नेम एंड पैन नंबर। लाइक सपोज ये वाला अपने फर्स्ट लेते हैं, तो यहाँ सौरभ मल, देन द पैन, तो सौरभ मल डैश ABCDE 1234F एंड द असेसमेंट ईयर। वैसा एक फोल्डर क्रिएट करेगा, उसके अंदर वो सब फोल्डर्स क्रिएट करेगा, बैंक स्टेटमेंट, कैपिटल गेन, जो भी 5-6 चीज होते हैं उनका फोल्डर्स क्रिएट करेगा। एंड वो पूरे फोल्डर का लिंक वो स्पेसिफिक जो इंडिविजुअल है उसको ईमेल जाएगा ना आपके पास, आप उसको चेक कर सकते हो। अब उसे कोई भी डेटा डालना है वो गूगल ड्राइव में आप अपलोड कर दो सर। अब आप उसको एक इंटीमेट कर दो कि इस कट ऑफ डेट सर वो देखेंगे। सर जो रिस्ट्रिक्ट वाला चीज है वो अभी सर नहीं हो रहा है। जो एक्सेस गूगल ड्राइव पे जो रिस्ट्रिक्ट है, गूगल ड्राइव पे जो रिस्ट्रिक्शन का एक्सेस है वो हम नहीं कर, वो अभी सर इन एक्सपेरिमेंट स्टेज पे है, मतलब मेरे साइट पे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप वो गूगल ड्राइव का पूरा लिंक आप उसको शेयर कर सकते हो जिसमें वो डेटा अपलोड कर सकता है। सो एक सिंगल रिसोर्स है जहाँ पे आप चेक कर सकते हो एंड वो डेटा अपलोड कर सकते हैं। एंड आप उसको इंटीमेट करो इस कट ऑफ डेट के अंदर आपको जितना डॉक्यूमेंट्स आप शेयर करो, ताकि आपके साइड आज कोई डेटा मिस नहीं हो, आप भी जो आईटीआर फाइलिंग कर रहे हो करेक्ट फाइलिंग हो। राइट। तो ये अपने कैसे कर रहे हैं, एक मिनट सर। यहाँ पे सर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है, क्लाइंट मास्टर। एक मिनट सर, इसके अंदर का ये एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ। एक मिनट, मोटो ट्रैवल, हाँ सर, ब्लैंक फोल्डर क्रिएट किया मैंने यहाँ पे। ठीक है। अब सर यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट भी दिया हुआ है, आप लोगों के पास लिंक होगा उसमें प्रॉम्प्ट भी चला जाएगा। क्या प्रॉम्प्ट दिया है एक बार वो देख लेते हैं अपने। सर ये थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग भी रीड कर सकते हो ऐसे। मैं बेसिक एक बार आपको बता, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रोफेशनल ऑटोमेशन कंसल्टेंट विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन गूगल ऐप स्क्रिप्ट। ये सर मैंने उसको आपको एक पर्सोना दिया है,
सर कोई भी अपने प्रॉम्प्ट देते हैं उसमें 6 क्वालिटीज होनी चाहिए। आई होप प्रॉम्प्ट का नॉलेज है सबको, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। पर्सोना, टास्क, टोन, कंटेक्स्ट, एग्जाम्पल एंड फॉर्मेट, 6 चीजें होनी चाहिए। तब अपना एक अफेक्टिव प्रॉम्प्ट बनता है जिससे अपने को रिजल्ट मिलेगा। अपने ये फर्स्ट पर्सोना दिया है। सेकंड अपने आते हैं, द एक्टिव गूगल शीट विल कंटेन क्लाइंट वाइज डेटा, जो क्लाइंट का हेडर्स है वो देगा, एंड ईमेल स्टेटस, a folder link column that is initially blank, and email status column that is initially blank column to capture the date and time when the email is sent. The script must iterate row by row, एक एक रो करके स्क्रिप्ट चेक करेगा। skip any record where mandatory details are missing. Mandatory details जो आपका फर्स्ट 4 कॉलम है, विच इज क्लाइंट नेम, ईमेल आईडी, पैन, असेसमेंट ईयर, इसमें ये क्लाइंट नेम, ये चारों कॉलम मैंडेटरी है, इसमें से कुछ भी मिस होगा तो आपका ईमेल नहीं जाएगा। एंड स्ट्रिक्टली वैलिडेट द पैन फॉर्मेट, जो स्टैंडर्ड इस फॉर्मेट में होना चाहिए। Folder creation and email sending must occur only once per client, ensuring the script can be safely rerun without duplication. एक बार आपने अगर क्लाइंट को ईमेल कर दिया, वो फोल्डर क्रिएट कर दिया, उस क्लाइंट का वापस उस साल का उस पैन का फोल्डर क्रिएट नहीं होगा, उसको वापस इस चीज के लिए वापस मेल नहीं जाएगा। आज अपने क्लाइंट को बोल रहे हैं कि आप स्पैम मत करो, आप क्लाइंट को स्पैम करने लग जाओगे, तो वो नहीं चलना चाहिए, वो हमें रोकना है। जस्ट बिकॉज ऑटोमेट करना है तो हम डेली मेल भेजते रहेंगे, वो चीज हमें नहीं करना है। हमने वो मेल किया, वो मेल का आप लिंक रखो, वो मेल आप उसको शेयर करो कि हाँ ठीक है मेल किया हुआ है, इस पे आप अपलोड करो डॉक्यूमेंट्स। बार बार मेल नहीं करना है, बार बार फोल्डर क्रिएट नहीं करना है। Using a predefined root Google Drive folder ID, the script should create a client-specific folder named client name PAN assessment year. इस फॉर्मेट में फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। The folder should contain following subfolder: KYC and master data, Form 16, salary document, bank statement, capital gain, other income, deduction, final idea, computation. ये सारे सब folders create होंगे। Then the folder must send a single professional HTML formatted email to the client, जो सब्जेक्ट मैटर रहेगा इनकम टैक्स रिटर्न, डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट फॉर असेसमेंट ईयर। अब ये जो असेसमेंट ईयर के बाद है, ये मैंने जो हाईलाइट किया ये सबको विजिबल है, जो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, इससे हम बोलते हैं प्लेस होल्डर्स। अब प्लेस होल्डर्स क्या होता है, ये आप अगर देखोगे, मैंने यहाँ जो हमारा कोड है, कोड में भी हमने इस तरह से यूज किया हुआ है। जो आप जो भी यहाँ डेटा फिलअप करोगे यहाँ पे असेसमेंट ईयर में या पैन में या जहाँ भी क्लाइंट नेम में, उस बेसिस पे हमने कोड में प्लेस होल्डर्स दिए हैं कर्ली ब्रैकेट्स में। उससे वो ऑटोमेटिक जो आप यहाँ डेटा फिल कर रहे हो, उससे वो मैप करके मेल ड्राफ्ट करेगा, उसमें वो कस्टमाइज मेल भेजेगा। जैसे सौरभ मल है तो डियर सौरभ मल भेजेगा, रोहित अग्रवाल है तो डियर रोहित अग्रवाला भेजेगा। इस तरह से वो सबको इंडिविजुअल कस्टमाइज मेल जाएगा। वो प्लेस होल्डर मैपिंग के लिए है कि जो आप गूगल शीट में जो डेटा डाल रहे हो वो मैपिंग ईमेल में कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये हुआ प्लेस होल्डर्स। एंड प्लस उसमें एक इमेज आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, जिसमें लिंक रहेगा गूगल ड्राइव का, जो स्पेसिफिक गूगल ड्राइव है उस क्लाइंट का। उसको आप क्लिक करोगे तो उसका फोल्डर, उसका गूगल ड्राइव खुल जाएगा जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकता है। मेल सेंड करने के बाद यहाँ पे आपका जो स्टेटस है यहाँ सेंड आ जाना चाहिए, डेट एंड टाइम आ जाना चाहिए, एंड फोल्डर का लिंक आ जाना चाहिए यहाँ पे। ये यहाँ पे है प्रॉम्प्ट, आप ये देख सकते हो प्रॉम्प्ट। अपने एक बार इसको देखते हैं, कोड देख लेते हैं अपने एक बार। यहाँ पे एक्सटेंशन में जाएंगे, ऐप स्क्रिप्ट में जाएंगे, कोड और प्रॉम्प्ट दोनों मैंने फोल्डर में दिया हुआ है, आप दोनों एक बार चेक कर सकते हो। ये मेरा कोड है। अब इसमें स्टार्टिंग में पूछा है रूट फोल्डर आईडी। अब ये फोल्डर आईडी हमें कहाँ से मिलेगा, हमने यहाँ फोल्डर क्रिएट किया था, ये क्लाइंट मास्टर। इस पे आप यहाँ राइट क्लिक करोगे, यहाँ शेयर का ऑप्शन आता है, इसमें आप कॉपी लिंक करोगे, यहाँ पे मैनेज एक्सेस क्लिक करना पड़ेगा आपको, जिसमें आपको एक्सेस देना पड़ेगा एनीवन विद द लिंक। ये बाय डिफॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड रहता है, इसे आपको करना है एनीवन विद द लिंक, एंड कॉपी लिंक करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, कोई भी मतलब जिसको एक्सेस जा रहा है, अगर आप रिस्ट्रिक्टेड करोगे तो वो भी इसको नहीं खोल सकता है। तो एनीवन विद द लिंक करोगे तो जिसके पास लिंक है वो ओपन कर सकता है। अब लिंक में अपने को क्या पूछा है कोड में, फोल्डर आईडी, हमें लिंक नहीं पूछा है, तो फोल्डर आईडी कैसे लोकेट करेंगे हम। आप अगर ये जो लिंक है उसे थोड़ा केयरफुली देखोगे, फोल्डर्स है यहां तक, ये वाला शीट विजिबल है लोकेशन,
एनीवन, ये वाला शीट विजिबल है, इसमें लिंक जिसमें है वो दिख रहा है? यस, ठीक है। तो फोल्डर, सॉरी, नो, यस, यस, ठीक है। फोल्डर्स के बाद अपना फॉरवर्ड स्लैश है, उसके बाद कुछ नंबर अल्फाबेट लिखे हुए हैं, वहां से हमें सेलेक्ट करना है, एंड क्वेश्चन मार्क के पहले तक हमें इसे सिलेक्ट करना है। दिस इज द फोल्डर आईडी। फोल्डर्स कोई भी आप यूआरएल लोगे कोई भी फोल्डर का, इसी फॉर्मेट में रहता है वो। इसमें फोल्डर बैकस्लैश के बाद जो नंबर है वो आपको लेना है टिल क्वेश्चन मार्क, एंड वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। ये मैंने यहाँ पेस्ट किया हुआ है। अब जो आपका नाम है, फर्म का नाम, वो आप डाल दो, मैंने अपना नाम दिया है, एंड सब्जेक्ट जो है वो आप डाल दो। ये इस बेसिस पे वो नीचे ईमेल ड्राफ्ट करेगा, ठीक है। अब ये अपना कोड है, ये हमने ये चैट जीपीटी से जनरेट किया है। इससे हमने बोला है कि ये सब फोल्डर क्रिएट करना है, केवाईसी मास्टर डेटा, फॉर्म 16 है सैलरी, बैंक स्टेटमेंट, कैपिटल गेन, अदर इनकम डिडक्शन, फाइनल आईटीआर कंप्यूटेशन, एंड ये आपका लास्ट में क्लाइंट को सेंड करना है ईमेल। ये अलग अलग फंक्शंस है, अब यहाँ पे आप देखोगे सब अलग अलग फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका, ये अपना ईमेल है, जो ईमेल जाएगा वो ईमेल का बॉडी है, ये इस तरह का ईमेल जाएगा। हमें ये कोड समझने की जरूरत नहीं है, हम चैट जीपीटी से करके, हम ट्रायल एंड एरर करके कर सकते हैं, लेकिन बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए। जैसे फोल्डर आईडी क्या होगा, फर्म नेम क्या होगा, ईमेल सब्जेक्ट क्या होगा, तो वो मतलब बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए, कोडिंग करना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब एक बार अपने ये करके देखते हैं। मैंने पर्पजली यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं रखा है, मैंने एक ही में रखा है। अपने देखते हैं इसमें भी कुछ होता है क्या। यहाँ पे अपने ईमेल आईडी रखा है हमने, जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि कैसा ईमेल जाएगा। आईटीआर ऑटोमेशन, रन आईटीआर ऑटोमेशन, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लाइंट फोल्डर ईमेल विल बी प्रोसेस, कंटिन्यू। अब क्योंकि ये फोल्डर क्रिएट कर रहा है, सब फोल्डर्स क्रिएट करेगा एंड ईमेल भेजेगा, इससे 2-5 मिनट टाइम भी लग सकता है। ये आपका सारा सब फोल्डर्स क्रिएट कर रहा है, सारा सब फोल्डर और फोल्डर का राइट्स दे रहा है इस ईमेल आईडी को। मैंने बाय डिफॉल्ट अपना ईमेल आईडी रखा है, देखने के लिए क्या मेल जाता है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ये अपडेट हो गया। फोल्डर लिंक, यहाँ पे अपना मेल ओपन हो रहा है, किस मेल में वो फोल्डर लिंक गया था यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। सेंट, एंड कब सेंट हुआ, ईमेल सेंट, डेट एंड टाइम, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो गया, ठीक है। अब कैसा मेल आया वो अपने एक बार यहाँ देख लेते हैं। Just- अब यहाँ पे सर अगर आप लोग देखोगे सब अलग अलग फोल्डर का राइट्स एक्सेस शेयर हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक ईमेल आया है, इनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। एक मिनट। हम्म, तो क्या मेल है, इनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट, डियर रोहित अग्रवाला, वी आर प्लीज टू इनिशिएट द प्रिपरेशन ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट 26-27, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ये एक्सेस रिस्ट्रिक्शन अभी एक्सपेरिमेंट स्टेज पे है, ये मैंने ट्राई किया है, ये अभी प्रोसेस में है, ये होने से मैं आप लोग को जरूर शेयर करूंगा। दिस कम्युनिकेशन इज कॉन्फिडेंशियल, इंटेंडेड सोनली फॉर द रेसिपिएंट, रिगार्ड्स, जो भी मेरा नाम है वो मैंने दे दिया। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो ऑटोमेटिक उसी क्लाइंट का फोल्डर खुल रहा है, यहाँ पे ऊपर नाम आ जाएगा, रोहित अग्रवाल पैन असेसमेंट ईयर। नाउ ये नाम मैंने क्यों लिया है, रोहित अग्रवाल पैन असेसमेंट ईयर, ताकि ये यूनिक रहे, डुप्लीकेट नहीं हो। अब 26-27 के बाद 27-28 का मैं काम कर रहा हूँ, तो वहां ऑटोमेटिक 27-28 होगा, तो नया फोल्डर क्रिएट होगा, 26-27 पे नहीं होगा। एंड वंस दिस इज डन, सिंस हमारा स्टोरेज का भी इश्यूज रहता है गूगल ड्राइव पे, तो वंस दिस इज डन, आपका एक बार रिटर्न फाइल हो गया, आप अपने आप उसको अपने सिस्टम में रखो। हमारा इंटेंशन था कि हमारा सिंगल रिसोर्स रहे, जो क्लाइंट से डॉक्यूमेंट्स दे रहा है उसे हम ट्रैक कर सके। हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि हम गूगल ड्राइव पे सब सेव करके रखें, राइट। तो ये आपका कंप्लीट हो जाए वहां शेयर कर, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सब क्रिएट कर दिया, केवाईसी मास्टर डेटा, 16 सैलरी, बैंक स्टेटमेंट, कैपिटल गेन्स, अदर इनकम, फाइनल आईटीआर कंप्यूटेशन, मोटा मोटी यही सब चीजें रहती है। आप कोई भी इंडिविजुअल का काम करते हो, अगर और कुछ रहता है तो आप कोड को मॉडिफाई कर सकते हो टू दैट एक्सटेंट, राइट। तो ये हमारा हो गया ब्रेन। अब हमें करना है एग्जीक्यूशन। नाउ अगेन एग्जीक्यूशन कैसे होगा, एनीवन, आप लोग भी बता दो सर। ट्रिगर, ट्रिगर, राइट। तो हम आते हैं अब ट्रिगर पे।
अब यहाँ पे हम अलग ट्रिगर क्रिएट करेंगे। ऐड ट्रिगर, विच फंक्शन टू रन, हमें कौन सा फंक्शन रन करना है, आईटीआर ऑटोमेशन, हमने यही फंक्शन रन किया था, ये बाय डिफॉल्ट हेड रहेगा। इवेंट सोर्स, अब हमें इवेंट सोर्स क्या देना है, टाइम ड्रिवन होगा, कैलेंडर होगा कि स्प्रेडशीट होगा। टाइम ड्रिवन होता है जो अपने पिछले बार देखे, कैलेंडर होता है जो स्पेसिफिक डेट पे होगा, एंड स्प्रेडशीट होगा जब कोई शीट में कोई एडिट होता है या कुछ होता है, तो हम यहाँ स्प्रेडशीट लेते हैं। ठीक है। इवेंट टाइप, ऑन चेंज या ऑन एडिट, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे जैसे ऑन चेंज लेता हूँ, किसी तरह का कोई चेंज मतलब क्या हुआ, कोई भी आप कुछ इंसर्ट कर रहे हो, कुछ आप कुछ भी कर, यहाँ पे कुछ भी आप नया डेटा इंसर्ट करोगे ऑटोमेटिक वो रन हो जाएगा। ठीक है। अगेन ये फेलियर नोटिफिकेशन, नोटिफाई मी डेली, सेव। हाँ सॉरी, हुआ नहीं क्या, हाँ हो गया। हम्म। तो अभी इस ऑटो इस फिगर से क्या होगा, आप यहाँ पे कुछ भी नया लिखोगे, मैं एक बार लिखता हूँ, रुकिए। जैसे यशप्रीत कैसी है, ये मैंने डेटा डाल दिया, मैंडेटरी फील्ड्स डाल दिया। अब मैंने कोई आईटीआर ऑटोमेशन पे क्लिक नहीं किया, ये ऑटोमेटिक रन हो रहा है। अब आप देखो रन होता है कि नहीं। हमने ट्रिगर तो क्रिएट कर दिया, ट्रिगर चल रहा है कि नहीं हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। पिछले वाले में तो टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो वीकली था, यहाँ पे अपने टेस्ट कर सकते, तो एक बार टेस्ट करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ लोड हो रहा है तो शायद कुछ हो तो रहा है, देख लेते हैं इसको करके। आ गया। हम्म, क्योंकि वो मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट कर रहा है तो उसे 2 मिनट टाइम लगता है। मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट कर रहा है, वो ईमेल को एक्सेस दे रहा है। यहाँ पे हमारे पास जैसे आते जा रहा है कि ये फोल्डर क्रिएट हुआ, इसका एक्सेस दिया। तो ये हो जाएगा, मतलब ठीक है, ये अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यहाँ पे जैसे फोल्डर इसने शेयर कर दिया तो ये कंप्लीट हो जाएगा, टाइम लग रहा है थोड़ा सा, दिस विल टेक। तो अपने एक बार आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। तो ये था हमारा सेकंड ऑटोमेशन, राइट, ये यूजफुल होगा, अपने यूज करेंगे, कुछ काम आ सकता है। यस। 100% सर, 100%। जरूर सर। तो एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, बाकी जो यूज केसेस है आप लोग को शेयर भी किया हुआ है, आप लोग खुद भी एक बार ट्राई कर सकते हो। जस्ट सर प्रॉम्प्ट और कोड सब सर ड्राइव में दिया हुआ है, उसका लिंक आपके पास मेल में आया होगा, जो आपने स्टार्टिंग में क्यूआर कोड में गूगल फॉर्म भरा था उसमें लिंक आया होगा, आप वहां से सब सर ले सकते हो। एक और है सर, ये क्लाइंट ऑनबोर्डिंग है, ये एक बार अपने छोड़ देते हैं, ये करते हैं ऑटोमेटेड कंप्लायंस रिमाइंडर, ये एक जरूरी है। तो इसमें सर क्या किया हमने, आज अपना कोई जीएसटी का ड्यू डेट है, टीडीएस का ड्यू डेट है, अब जीएसटी आर 1 के लिए हर महीने 10 तारीख को अपना रिटर्न जाना है, हर महीने 3 तारीख 4 तारीख को आप क्लाइंट को मेल करो
क्लाइंट को फोन करो कि भाई मेरा तो आपका जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, आप उसका डिटेल्स भेजो। आप नहीं बोलोगे तो क्लाइंट क्या बोलेगा, आपने मुझे बताया नहीं इसने इसलिए मेरा जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं हुआ। भाई जीएसटी रिटर्न आपका है, मैं क्यों बताऊं। लेकिन ठीक है चलो, आज मैं आपका प्रोफेशनल हूँ, मुझे बताना है। तो वो चीज़ हमने ऑटोमेट किया है यहाँ पे। इसमें क्या क्या कॉलम है, एंटिटी, क्लाइंट नेम, ईमेल आईडी, आपका जो वर्क है वो, ड्यू डेट, स्टेटस एंड लास्ट रिमाइंडर सेंट। नाउ स्टेटस एंड लास्ट रिमाइंडर सेंट, सर मैं क्यूआर कोड लास्ट में यहाँ पे ही शेयर कर दूंगा, चैट बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा। एक मिनट सर। जो आप स्टेटस और लास्ट रिमाइंडर, आप स्टेटस में यहाँ पेंडिंग डाल दो जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होता है। एंड लास्ट रिमाइंडर सर ऑटोमेटिक जाएगा। आपका जो भी ड्यू डेट है, सपोज करो आपने ड्यू डेट दिया, क्या बोलते हैं यहाँ पे, अपना आज डेट है 18 फेब। 18 फेब अपना आज का डेट है। इसमें सर अपना रूल दिया हुआ है कि जो अपना ड्यू डेट है उससे अगर 5 दिन के पहले अपना सिस्टम डेट है, सपोज करो आज 18 तारीख है, 18 तारीख से 5 दिन कब हुआ, 23 फेब। अगर 23 फेब को मेरा कोई ड्यू डेट रहता है तो सर मेरे पास एक ईमेल रिमाइंडर जाएगा। उसके बाद 3 दिन का डिफरेंस में जाएगा। उसके बाद जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन जाएगा। और अगर ड्यू डेट के दिन तक आप यहाँ आपका आपने मतलब अगर आपने काम कंप्लीट कर लिया, आप यहाँ स्टेटस अपडेट कर दो। अगर इनकेस काम कंप्लीट नहीं होता है, पेंडिंग रहता है, तो ड्यू डेट पार होने के बाद, सपोज 18 तारीख आपका 17 तारीख ड्यू डेट था, आज 18 तारीख है। ड्यू डेट पार होने के बाद हर दिन मेल जाएगा क्लाइंट के पास कि ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि आपने डेटा नहीं दिया, कि ये ड्यू डेट पार हो गया। राइट। तो ये एक बार अपने इसको मैनुअली रन करके देखते हैं। एक सेकंड सर। इसमें सर मैंने 5 केस लिया है। जैसे 18 फेब है, फर्स्ट है 28 फेब, 10 दिन बाद का ड्यू डेट है, तो हिसाब से इसमें जाना नहीं चाहिए ईमेल। सेकेंड है सर आपका 21 फेब। अब 21 फेब का ड्यू डेट है, लेकिन ये मैंने स्टेटस किया है कंप्लीटेड, पेंडिंग नहीं किया है, तो इसमें भी मेल नहीं जाना चाहिए। थर्ड है 15 फेब, जो मेरा ड्यू डेट चला गया, आज है 18 फेब, तो इसमें मेल जाना चाहिए। ये है आपका 23 फेब, 5 दिन का गैप है, तो इसमें भी जाना चाहिए। 18 फेब सेम डे है, तो उसमें भी जाना चाहिए मेल। ये लास्ट 3 केसेस में मेल जाना चाहिए, फर्स्ट दो में नहीं जाना चाहिए। जो हमारा रूल है कोडिंग का, जो हमारा एप्सक्रिप्ट का कोड हमने डाला है उसमें जो रूल डिफाइन किया हुआ है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। एक मिनट, रन रिमाइंडर्स। तो यहाँ पे अब मैंने यहाँ 2 चीज दिया है, टेस्ट मोड एंड लाइव मोड। कि एक बार आप पहले, आप जो एप्सक्रिप्ट कोड डाल रहे हो, आप पहले उसको टेस्ट मोड पे आप उसको रन करके देख लो। आप जब रन करोगे उसको, अगर मैं यहाँ पेंडिंग नहीं भी लिखता हूँ, मैं इसको एप्सक्रिप्ट को रन करता हूँ, ऑटोमेटिक यहाँ पेंडिंग आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो वो अगर आ रहा है मतलब आपका कोड सही चल रहा है। आपके पास मेल नहीं जाएगा, लेकिन आपका स्टेटस यहाँ अपडेट हो जाएगा। तो आप पहले उसको देख लो, और फिर अगर आपका कोड ठीक चल रहा है तो आप लाइव मोड में जाओ। तब यहाँ पे क्या है, मोड स्विच टू लाइव मोड, ईमेल रिमाइंडर्स विल बी सेंट। अब यहाँ पे आप इसको रन करो, रन रिमाइंडर स्क्रिप्ट। अब देखो लास्ट का 3 केस में मेल चला गया, पहला 2 केस में नहीं गया। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या था ये कॉलम्स रखने का, पहले अपने वो देख लेते हैं, फिर अपने मेल देखेंगे। कोई भी एंटिटी है, आज एंटिटी में अपने टीडीएस फाइलिंग करते हैं या जीएसटी फाइलिंग करते हैं, तो उसका एक कंसर्न पर्सन है जिससे आप कांटेक्ट करते हो। हर पर्सन से आप बात नहीं करते हो वहां पे। तो जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो, उस पर्सन का ईमेल आईडी, आप नाम यहाँ डाल दो, जिससे उसको थोड़ा सा एक पर्सनलाइज टच आता है मेल में, जिससे हो सकता है आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाए। तो वो मैंने यहाँ क्लाइंट का नेम डाला है, यहाँ पे एंटिटी का नाम डाला है। ठीक है। तो एक बार इसको अपने देखते हैं अपना क्या मेल गया। एक सेकंड सर। ये हाँ, एक सनराइज एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे गया सनराइज टैली डेटा फॉर इनकम टैक्स ऑडिट डेटा। डियर अमित भैया, दिस इज रिमाइंडर टू प्रोवाइड टैली डेटा फॉर इनकम टैक्स ऑडिट, काइंडली शेयर द डेटा एट द अर्लीस्ट रिगार्ड्स, जो भी आप यहाँ डाल दो। तो ये ऑटोमेटिक एक रिमाइंडर मेल चला गया। ये आपका है टैली डेटा फॉर जीएसटी एनुअल रिटर्न, ये आपका इस तरह से चला गया। इसका भी आप अकॉर्डिंगली जैसे अपने बाकी में किए, इसका भी अपने ट्रिगर क्रिएट कर सकते हैं, जिससे ये पूरा ऑटोमेट हो जाएगा चीज। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक और है, वो आप खुद ट्राई करो, कोई भी क्वेरी होगा आप लोग प्लीज कम बैक टू मी, आई विल रिप्लाई। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी, आई एम हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस। लोकेश जी। वो क्यूआर कोड एक बार दे दीजिए सर ग्रुप में, हाँ चैट्स सर, में।
हाँ सर, 1 मिनट दे रहा हूँ सर। मैं सेंड कर रहा हूँ, पता नहीं जा नहीं रहा है। हाँ सर, कर दे रहा हूँ, मैं कर दे रहा हूँ। चैट्स में नहीं, आप सामने दिखा दीजिए एवरीबडी, यू कैन अच्छा, स्कैन क्यूआर। ठीक है सर, मैं ये दिखा देता हूँ, ये रहा। हाँ, मैं ग्रुप में हाँ मैं सर, भेज दूंगा। आप ठीक है। एनीबडी, दोज हु आर हियर लाइव, प्लीज हम्म, स्कैन दिस क्यूआर एंड यू विल सी द मैजिक और वन ऑफ द एग्जांपल व्हाट इज पॉसिबल। यस सर। दिस इज आल्सो यूज केस इन फैक्ट। यस सर, दिस इज ऑल्सो यूज केस। दिस इज ऑल्सो यूज केस सर। So one second, let me now. So anybody, you can unmute yourself now. Those who have doubts after this wonderful session, 3 to 4 use cases have shown, and it's really wonderful. So many things can be done. I told at the beginning of the session also that यस Gmail सर। automation or Google Workspace automation is wonderful. Google Drive, Google Mail, Google Sheets, all these things can be perfectly automated. Wonderful examples were shown. यस सर, यस सर, डेफिनेटली। Okay, so little bit, sir, please once again explain how to give access for folder. हाउ This टू गिव thing, एक्सेस। सर, ये हमने जो एप्सक्रिप्ट कोड है, उसी में सर हमने एक्सेस दिया है। वो ऑटोमेटिक फोल्डर क्रिएट करके जो कंसर्न पर्सन का ईमेल आईडी है उसको ऑटोमेटिक एक्सेस देगा। आपको जो आप कोड जब जनरेट कर रहे हो उस समय आप वो चीज डिफाइन करो प्रॉम्प्ट में, वो ऑटोमेटिक उस हिसाब से एक्सेस देगा। हमें स्पेसिफिकली एक्सेस नहीं देना है। जी, जैसे ही हाँ मैंने सर। ये क्यूआर कोड सेलेक्ट करके मैंने डेटा अपडेट किया, इमीडिएटली आई गॉट द मेल, थैंक यू सो मच। यस सर, यस लाइव सर। केस, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। okay, anyone, any more doubts? But it was very nicely explained slowly. उन्होंने prompt भी पढ़ा है, everything was there. तो still, if anyone is having any more doubts, you can unmute yourself. सर आपने जो लास्ट एग्जांपल अभी दिखाया था उधर जी सर। 20 पेंडिंग था, वो समझा नहीं मतलब। कौन सा सर? एक एक मिनट। क्या ये चीज सर सर? फर्स्ट फर्स्ट में पेंडिंग, 28 पेन इसका लॉजिक। सर। हाँ, लॉजिक ये था सर, आज 18th है अपना। जनरली 5 दिन का गैप में ईमेल जाएगा। अगर 5 दिन से ज्यादा गैप है तब तो सर 1 साल तक बहुत ड्यू डेट्स आता है, कितना का अपने मेल भेजेंगे। मैंने ये रूल डिफाइन किया है कि आज जैसे 18 से 5 दिन हुआ, 23rd फेब। 23rd फेब का कोई ड्यू डेट है तो आज 18 फेब को ऑटोमेटिक चला जाएगा। ये 28 फेब तो सर 10 दिन का गैप हो गया, इसलिए वहां पे मेल नहीं गया, क्योंकि मेरा रूल डिफाइंड है 5 दिन का गैप का। ओके। एंड सर वो स्टेटस ऑटोमेटिकली अपडेट होगा क्या, कैसा है मतलब उसका? सर स्टेटस ऑटोमेटिक अपडेट होगा। आप एक बार ट्रिगर क्रिएट करोगे ना, वो ऑटोमेटिक, आप यहाँ जैसी एंट्री पास करोगे, ऑटो अगर ब्लैंक रहता तो बाय डिफॉल्ट पेंडिंग स्टेटस अपडेट होगा। आपका जब एक बार काम हो जाए आप उसको कंप्लीटेड कर दो, उसके बाद वो मेल नहीं जाएगा, मेल स्टॉप हो जाता है। या अगर आपका है कि ये रिकरिंग काम है, जैसे टीडीएस का जीएसटी का रिकरिंग काम होता है, आप उसका मंथ खाली चेंज कर दो। मंथ चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट मंथ में मेल जाएगा, इस मंथ में नहीं जाएगा। हर मंथ में सर बिगिनिंग में एक बार आपको मंथ एक बार आपको चेंज करना है, तो आपका ऑटोमेटिक मतलब उस हिसाब से वो डिफरेंस कैलकुलेट करके मिल जाएगा। सर ये और कहाँ सीख सकते हैं डिटेल में, एप स्क्रिप्ट वगैरह? अरे सर, आप सर यूट्यूब में काफी वीडियोस है, काफी स्मॉल कोर्सेज भी हैं। और सर मतलब सर इंस्टीट्यूट का जो एआई का कोर्स है आप वो भी कर सकते हो। आपने किया है क्या सर वो कोर्स? नहीं सर। वो सर कर सकते हो, उससे आपको काफी क्लैरिटी आती है। लोकेश जी भी काफी मतलब इस पे बता पाएंगे। सो लाइक YouTube पे दैट विल है सर, आल्सो हेल्प। हाँ, YouTube यूट्यूब पे पे है सर। काफी है। एक्चुअली हम लोग टाइम थोड़ा YouTube को कम देते हैं, देते बट हैं, YouTube पे राइट। है। और इनफैक्ट हाँ। मैं जस्ट टू ऐड कि मेरा भी एक वीडियो एप्सक्रिप्ट पर है ऑलरेडी, तो ओके। आप वो भी देख सकते हाँ हैं। हाँ सर, जरूर। तो वो भी देख सकते हैं, उससे आपको थोड़ा क्लैरिटी हाँ और मिल जाएगा। उसमें भी प्रॉम्प्ट वॉम्प्ट ये सब देके हम लोग कैसे ईमेल ऑटोमेशन कर सकते हैं, वो पूरा एग्जांपल है। तो उससे जी। आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगा। जी सर। ठीक है, एनीवन, एनी मोर डाउट्स? Sir, यस sir, यस। प्लीज। यस मैम। sir, it was really amazing session. I have recently joined AI Level 2 course at Jaipur, which was ओके held मैम। on started on 7th of February, and ओके। I completed it on 12th. And ओके। going through your session, I realized कि I could very well connect. मेरे को अपना कैपस्टोन वो प्रोजेक्ट सबमिट करना है, प्रेजेंटेशन,
आई Okay. थिंक आज का सेशन मुझे बहुत हेल्प करेगा सर. थैंक यू सो Thank मच. you, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks a lot. It Love was to know really that. wonderful. I Thank mean, you, ma'am. I'm looking forward for other sessions of yours. Thank you, ma'am. Definitely, sir. Definitely, ma'am. Thank you, sir. Definitely, ma'am. Thank Thank you, you. sir. Thank you, ma'am. Okay, Hello, sir. great. That's Yes, good sir. news. Yes, sir. Yes, please. So this is CA Jagan Kumar from Hosur, Tamil Nadu. I Yes, sir. got recently introduced to this WhatsApp group thing, and this is my first session of this thing. And I really enjoyed your session. I have a lot of, I have queries Okay, sir. because I joined mid of the session. So I Okay. have raised one query, which is your mail ID and phone number. Please share your phone number for the benefit of all. Yes, sir. I need your consultations. Thank you. Definitely, sir. Definitely, sir. Lokesh Yes. ji will definitely share. Anyways, we are going to give in the group also link to further connect with the speaker. Sir Yes. is also active on LinkedIn also. So Yes. first Yes, thing ma'am. we are going to share LinkedIn, and also we are going to give email ID also. Sir, also there is a LinkedIn QR also. आप Yes, वहाँ yes, भी please, like आप वो भी स्कैन कर सकते हो, तो you'll get the हाँ आप access to सर my है तो profile. हाँ डेफिनेटली. सर, एक मिनट सर, शेयर कर देता हूँ. एक- हम्म. Okay, so any more doubts, anyone? You can unmute yourself. Any more doubts before we wind up? Okay, no more doubts. So, sir, thank you so much. And Thank you, sir. once Thank you, again, sir. thank you, especially because this is a very underutilized topic. Again, third time I'm saying this, Yes, but yes, this sir. is Yes, sir. really very Definitely. powerful. And Yes. like we have seen that we can do automatic email, saving to folder, Google Drive, everything. Plus, just one thing I want to add, that even in Google Drive, we had done one session. We learned in the sessions only. So earlier, this offline Google Drive also is there, which you can link with your Google Yes. Drive. Yes. So Yes. those Yes. things sir, can help you a lot. Okay. So before we wind up, finally, any more doubts? सर Thank एक you, sir. लास्ट Thank क्वेश्चन you. था. Yes, yes, बताइए yes. सर. Please. सर जैसे हम अपलोड करेंगे हमारे डॉक्यूमेंट, तो जो और एक क्लाइंट रहेगा तो उसके भी डॉक्यूमेंट एक दूसरे देख सकते हैं क्या? सर समझ नहीं आया सर क्वेश्चन मेरे को. सर क्वेश्चन ऐसा था कि अगर मैं गूगल ड्राइव एक्सेस कर रहा हूँ, उधर डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ, तो राइट. मुझे जो दूसरा क्लाइंट है नहीं उसके सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर. आपको सिर्फ वही फोल्डर शेयर होगा, उसी क्लाइंट का, स्पेसिफिक क्लाइंट का फोल्डर शेयर होगा. आपको पूरा क्लाइंट मास्टर शेयर नहीं हो रहा है. लेकिन जो सेंड कर रहा है, जो प्रैक्टिशनर है, जो सेंड कर रहा है, उसको सारे फोल्डर्स का एक्सेस है. अदरवाइज वो कैसे आईटीआर का काम करेगा? क्लाइंट को उसका स्पेसिफिक फोल्डर ही शेयर होगा. ओके. इनका डाउट जो मुझे लगा वही है सर. मतलब एक क्लाइंट को देने तो दूसरा क्लाइंट दूसरा चीज को नहीं देख पाए. दिस इज हाँ ऑब्वियस. हाँ हाँ, वो तो है ही सर. क्लाइंट वाइज ही शेयर हो रहा है, ओवरऑल फोल्डर शेयर नहीं हो रहा है. क्लाइंट वाइज स्पेसिफिक उस क्लाइंट का ईमेल आईडी पे उस क्लाइंट का फोल्डर शेयर होगा. ओके. सो आई थिंक नो मोर डाउट्स. जस्ट वन लास्ट रिक्वेस्ट, थोड़ा फीडबैक आप ग्रुप में भी दीजिए तो स्पीकर को भी हम लोग एक्चुअली रियलाइज होता है. क्योंकि चैट्स वगैरह क्या होता है, भेज देता हूं मैं सब स्पीकर को जितना हो सके निकाल के. बट ग्रुप में रहने से क्या रहता है कि इट विल बी गुड फॉर अदर्स ऑल्सो. एनकरेजमेंट मिलता है लाइव सेशंस के लिए. प्लस स्पीकर को भी थोड़ा रहता है कि कैसे क्या किया, फीडबैक. सो प्लीज ट्राई टू गिव द फीडबैक इन द ग्रुप ऑल्सो, so that it is encouraging for all of us. I also shared the LinkedIn ID also if anyone कोई QR का इशू है तो. हाँ नहीं. हेलो. यस सर. हाँ सर क्या हम टेली को गूगल शीट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब डैशबोर्ड बनाने के लिए? सर कर सकते हैं सर. एसक्यूएल Without third party. का ऑप्शन है, एसक्यूएल का ऑप्शन है सर, वहां से आप टैली को कर सकते हो कनेक्ट. सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप अगर ट्राई करोगे वो चीज हो जाएगा. इट्स नॉट दैट कि नहीं होगा, वो हो जाएगा. तो उसके लिए एसक्यूएल सीखना पड़ेगा? सर एसक्यूएल, हाँ सर थोड़ा सा. सर एसक्यूएल का लोकेश जी का है सर वीडियोस. दुनिया का सबसे इजी लैंग्वेज अगर वो हाँ कोई मुझे पूछता है तो वो एसक्यूएल है. एसक्यूएल है. हाँ सर. ओके. ठीक है. आई थिंक नो मोर डाउट सर. थैंक यू सो मच फ्रॉम माय Thank साइड you, sir. ऑल्सो वंस अगेन फॉर मेकिंग अ underutilized topic very easy. and actually main reasons is that एक घंटा में हम लोग बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बट मेन इज दैट वी गेट द आइडिया कि ये Right. पॉसिबल है.
ट्राई हमको करना है। चैट जीपीटी सबके पास है। योर ओन प्रॉब्लम्स आर वेरी कस्टमाइज्ड नेचर, सबका अलग राइट, अलग होगा। यस सर ने 4 यस एग्जांपल दिखाए। अब हमको हमारा काम क्या है कि हम उस एग्जांपल से हमको एक पता चला कि ये चीज इससे इजीली हो सकता है। सो राइट, नाउ वी हैव टू प्रैक्टिस दैट। यूज चैट जीपीटी, यूज द प्रॉम्प्ट्स गिवन बाय द स्पीकर। हम लोग ग्रुप में है ही, इफ एनीवन डाउट समबडी अदर इज हेल्पिंग ओनली। लेकिन आप उसको यूज कीजिए अपना ऑफिस में, अपना कस्टमाइज काम को मतलब ऑटोमेट करने के लिए। देयर इज नो ब्लैंकेट रूल कि ये हमेशा चल जाएगा, ये हमेशा परफेक्ट है। हमेशा स्कोप राइट, ऑफ इंप्रूवमेंट रहेगा। एंड हमेशा जितना आप उसको खुद के लिए कस्टमाइज करेंगे उतना आपको मतलब मजा आएगा। यू विल एंजॉय द ऑटोमेशन एंड इट विल बी फ्रूटफुल। यस सर, ठीक यस है, सर, वेरी ट्रूली चलो सेड, वेरी ट्रूली सेड। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। एट द एंड ऑल्सो मतलब 40-50 पार्टिसिपेंट्स रहते हैं सर। अब हमको लग रहा है कि हाँ हम लोग मतलब चलो थोड़ा थोड़ा तो ठीक कर रहे हैं सर। नहीं थैंक नहीं यू सो सर, मच एवरीवन। इट रियली वेरी वेरी नाइस दैट at till the end so many participants are there to support us, to learn from us, from the speaker. Sir, thank you so much. Thank you थैंक so यू much. सर, थैंक यू सर, थैंक यू Good night everyone. Next गुड session नाइट details I am एवरीवन, sharing very soon. Thank you so much everyone. थैंक यू सर, थैंक यू।